ان فلڈ سے متاثر ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو مالی نقصان ہوا, جانی نقصان بھی افسوس سے ہوا, لیکن جو مالی نقصان ہوا ہے وہ پچھلے جو 2010 کے فلڈ تھے اس سے بھی زیادہ ہوا. اب میں اپنی سارے بیرون ملک پاکستانیوں اور نارتھ امریکن پاکستانیوں, جو میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں فنڈ ریزنگ سے پہلے, کہ دیکھیں انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کوشش دی ہے اور نیت دی ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے, اس میں ساری قوم کو مل کے اس چیلنج کا سامنا کرنا ہے. اللہ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے, اس میں جتنے بھی جو بھی پاکستانی ہیں دنیا میں جدھر بھی ہیں, سب سے پہلے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس میں پوری طرح کوشش کریں اور کنٹریبیوٹ کریں, اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ یہ جو 3 کروڑ لوگ تقریباً متاثر ہیں ان کی مدد کر. پچھلی باری جو ہم نے ٹیلی تھون کیا تھا اس نے سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے. ہم نے 5 ارب روپے سے زیادہ اکٹھا کیا, اور یہ جو ٹیلی تھون ہے اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اپنا پچھلا ریکارڈ توڑیں گے. آج میں نے ثانیہ نشتر کو دعوت دی ہے کیونکہ ثانیہ نشتر ہیڈ کر رہی ہیں جو ہمارے 2 فنڈز جا رہے ہیں, جو کے پی چیف منسٹر کا فنڈ ہے اور پنجاب کے چیف منسٹر کا فنڈ. اس فنڈ کو ہیڈ کر رہی ہیں ثانیہ نشتر. ہم نے ثانیہ نشتر کو اس لیے چوز کیا اس بڑے چیلنج کے لیے کیونکہ انہوں نے جو کووڈ-19 دنیا میں جو تباہی مچائی تھی, اس نے اس دوران پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا جو ہم نے اس وقت لے کے آئے تھے متاثرین کے, جو اس وقت بہت لوگ متاثر ہوئے جب ایک دم لاک ڈاؤن لگ گیا, دنیا میں بھی ساری ٹریڈ ختم ہو گئی, تو اس سے جو لوگ متاثر تھے اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل پروگرام لے کے آئے تھے احساس کا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان کا جو احساس کا پروگرام تھا وہ ورلڈ بینک اور دنیا نے سمجھا کہ ایک انہوں نے بھی اکنالج کیا کہ دنیا کے ٹاپ بہترین 4 پروگرامز کے اندر وہ تھا. تو وہ ثانیہ نشتر نے پورا پروگرام بنایا تھا, اور اب اسی کو ان کو ہم نے ذمہ داری اس لیے دی کہ وہ بڑا بہترین طریقہ تھا کہ شفاف طریقے سے اور تھوڑے وقت میں ہم نے اتنا زیادہ پیسہ تب لوگوں کے اندر تقسیم کیا تھا. اب میں چاہوں گا کہ ثانیہ آپ کو یہ پہلے بتا دیں کہ ابھی تک کیا سچویشن ہے, کتنا پیسہ اکٹھا ہوا, وہ آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گی. اس کے بعد ہم نے اب یہ پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے, اور جو 2 ہماری حکومتیں ہیں پختونخوا کی اور پنجاب کی, ادھر تو ہمارا نسبتاً آسان طریقہ ہے کیونکہ گورنمنٹس ہماری ہیں, اور اب ہم نے جو وعدہ کیا ہوا کہ ہم سارے پاکستان کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, تو بلوچستان کے لیے اور سندھ کے لیے ایک اور پلان بنا رہے ہیں کہ وہاں جدھر ہماری حکومتیں نہیں ہیں جو آپ پیسہ دیں گے یہ ہم نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ثانیہ پلیز آپ آگاہ کریں لوگوں. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. 29 اگست کو جو ٹیلی تھون ہوا تھا اس میں 5 بلین کی پلیجز آئی تھیں. اس 5 بلین میں سے 3 بلین 30 ملین پاک روپیز جو ہیں وہ اس وقت فلی ریئلائز ہو چکے ہیں. 1 بلین 92 ملین جو ہیں وہ انٹرنیشنل کلیکشن ہے, اور 1 بلین 938 ملین جو ہے وہ ڈومیسٹک کلیکشن ہے, یعنی کہ پاکستان کے اندر سے آئے ہیں. تو یہ رہے 3 بلین 30 ملین. اب کیونکہ پلیجز 5 بلین تھیں تو میں آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ ٹیلی تھون میں ایک صاحب نے 2 بلین کی پلیج کی تھی, اور وہ اس وقت ہمارا 501c3 اسٹیٹس کی جو آرگنائزیشن ہے جو بڑے ایڈوانس سٹیجز میں ہے بننے کے لیے, اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کو ٹیکس بینیفٹ بھی ہو جب وہ پیسے یہاں پر بھیجیں. تو تقریباً 5 بلین کی جو پلیجز ہوئی تھیں ان سے زیادہ جو ہے ریئلائز ہو چکی ہیں. اب جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہیں وہ 97,507 ہیں. اس میں سے 16% جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ
इंटरनेशनल हैं और 83% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। जो एवरेज साइज ऑफ डोनेशन है वो इंटरनेशनल डोनर्स का बड़ा है, वो 69,000 है, और डोमेस्टिक डोनर्स का जो एवरेज साइज है वो 24,000 है। और मैं चाहूंगी कि इस वक्त जो छोटी सी एक स्लाइड है जो वो भी काइंडली अगर प्रोजेक्ट कर लें ताकि ये नंबर जरा रजिस्टर हो जाएं। अब मैं आना चाहती हूँ जो डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस है। अभी तक तो आपको एक बड़े टॉप लाइन हमने बता दिया कि पैसे कितने आए हैं, प्लेज कितने हुए थे और आए कितने हैं, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की जो डिफरेंशिएशन है। जो हमने डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस जो हमने अडॉप्ट किया है वो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है, कंसल्टेटिव है। जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया, 2 कमिटीज बनी हैं, एक केपी में और एक पंजाब में, और अभी हम सिंध बलोचिस्तान और बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स का जो प्रोसेस है वो भी हम गवर्नमेंट्स को रीच आउट कर रहे हैं ताकि उसी तर्ज पे हम उसकी भी दागबेल रखें। हमारी अजम्पशन ये है कि 100 बिलियन प्लस डैमेजेस in damaged and destroyed houses across Pakistan, जो 100 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा लेट मी पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। इस किस्म की कुदरती आफत में, खासतौर पे सैलाब में, जो हुकूमतें होती हैं वो डिफरेंट मद में डिफरेंट कैटेगरीज में असिस्टेंस देती हैं। उसमें लाइव्स लॉस्ट की असिस्टेंस फर्क होती है, इंजर्ड की असिस्टेंस अलहदा होती है, लाइफ स्टॉक की अलहदा होती है, क्रॉप लॉस की अलहदा होती है, और एक उसमें कैटेगरी हाउसिंग की भी होती है। तो हमारी कमिटीज ने बड़ी मशावरत के बाद ये फैसला किया है कि हम हाउसिंग, कैश फॉर हाउसिंग में जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उसके साथ जो है अपने फंड्स मिला के देंगे। और ये मैं आपको बताती चलूं कि जब हमने एहसास इमरजेंसी कैश किया था उस वक्त भी गवर्नमेंट के जो 174 बिलियन थे उसमें जो ऑलमोस्ट 5 बिलियन थे वो थे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फंड रेजिंग स्टैंड अलोन की थी। तो हम वही मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के फंड्स को लेवरेज कर रहे हैं, मगर इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी होगी। आप में से कई लोगों ने वो रिपोर्ट देखी होगी एहसास इमरजेंसी कैश की, जिसमें फुल ट्रांसपेरेंसी शो की गई है कि फंड फ्लोज क्या है, और यहाँ भी हम इसी तरह बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये विजिबिलिटी आपको सब देंगे। तो हमारा हदफ ये है कि हम 10 बिलियन यानी कि कैश फॉर हाउसिंग का जो 10% है वो हम कंट्रीब्यूट करें। उसमें 5 बिलियन ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और आज का हदफ ये है कि 5 बिलियन और हम कलेक्ट करें। मैकेनिज्म ऑफ डिसबर्सल जो है उसके हमने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं। सबसे पहले ये कि उसमें ह्यूमन डिस्क्रेशन कुछ ना हो, जैसे कि एहसास इमरजेंसी कैश में थी, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस था, ह्यूमन डिस्क्रेशन उसमें ना हो, फुल ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस उसमें बिल्कुल वजह हो, पीपल सेंटर्ड प्रायोरिटीज हो, यानी कि लोगों के लिए आसानी हो कैश कलेक्शन में, और ये टेम्पर प्रूफ प्रोसेस हो कि लोग इसमें रद्द बदल ना कर सकें। 2 चीजें हैं, एक तो लोगों की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी और दूसरे लोगों की पेमेंट कैसे होगी। तो अगर वो स्लाइड्स इस वक्त चल रही हैं तो आप देख सकेंगे, और मैं इसको बाद में इसको सोशल मीडिया भी पर भी डालूंगी ताकि थोड़ा सारा प्रोसेस क्लियर हो जाए। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ केपी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो ऑन ग्राउंड इन्यूमरेटर्स हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं, उनमें हमने एक ऐप एम्बेड की है, और वो इन्यूमरेटर्स जो है वो टैबलेट्स लेकर फील्ड में जाएंगे, घर घर, जहां घर पार्शली डैमेज है, फुली डैमेज्ड है, उस लोकेशन की तस्वीर लेंगे, वो तस्वीर गूगल मैप पर पोस्ट करेंगे, और उस जगह का की GIS लोकेशन लेंगे, उसके लैट्स लॉन्ग्स जो हैं वो भी सिस्टम में फीड करेंगे, यानी कि आप उस घर का देख सकेंगे कि वो किस तरह डैमेज हुआ है, उसकी तस्वीर भी जियो लोकेशन पे मौजूद होगी। ये जब डेटा आ जाएगा तो कुछ इसमें वेरिएबल्स होंगे, हर डैमेज घर के पार्शली या फुली, घर के सरबराह का CNIC होगा, मोबाइल नंबर होगा, और 1-2 वेरिएबल्स होंगे। जब ये वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम इनको डेटा एनालिटिक्स से गुजारेंगे, और फिर हम
इस डेटा को सुपर इम्पोज करेंगे सैटेलाइट इमेजरी से। तो मैं देख रही हूं कि अब इस वक्त अगर हमारी स्लाइड्स चल रही हैं तो उसमें इमेजेस आप देख सकेंगे कि हमारे पास प्री फ्लड इमेजरी है, और जो स्लाइड इस वक्त आप देख रहे हैं कि डीजी खान की स्लाइड्स हैं। एक तरफ आप नहर देख रहे हैं, राइट साइड पे आप शहर उसका दरिया को देख रहे हैं, और इमेजेस में आप ये देख सकते हैं कि प्री फ्लड इमेजिंग है, और उसके बाद पोस्ट फ्लड प्री फ्लड स्ट्रक्चर्स कहाँ थे, प्री फ्लड क्रॉप्स कहाँ थी, और फिर पोस्ट फ्लड आप ये देख सकेंगे कि वहां पर फ्लडिंग कहाँ से हुई है, और फिर इसके ऊपर हम एक और लेयर जो है वो मोजे की भी डाल देते हैं। तो बताना मैं ये चाह रही हूँ कि 2 डेटा सेट्स हैं, एक सैटेलाइट इमेजरी से प्री एंड पोस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और इसको हम सुपर इम्पोज करेंगे उस इंफॉर्मेशन से जो फील्ड से आएगी, और उस इंफॉर्मेशन में जो घर पार्शियली या फुली डैमेज हुए हैं उनकी तस्वीरें प्लस उनकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन होंगी। तो हतल वसा हमारी ये कोशिश है कि ये डेटा एनालिटिक्स के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा इसमें ह्यूमन डिस्क्रेशन का एलिमेंट हटाएं। अब जब हमारे पास इस पे हम एहसास की जो डेटा एनालिटिक्स थी वो भी रन करेंगे। जब हमारे पास अहल घरानों के CNICs आ जाएंगे तो वो फिर हम अपने बैंक्स को पास करेंगे। बैंक्स में हमने एक नया प्रोसेस हमने लाया है। सबके डिजिटल पे ऑर्डर्स बनेंगे, वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रखे होंगे, और जब लोग किसी भी बैंक ब्रांच में, डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच में, चाहे वो हमारे सरकारी बैंक्स हों या पार्टनर बैंक्स के हों, तो जो भी अहल घर जाएगा और उनको SMS जाएगा कि जी आप अहल हैं, आप जाके अपनी पेमेंट ले लें। जब वो जाएंगे वो अपना बायोमेट्रिक सिग्नेचर करेंगे और वो ऑथराइज हो जाएंगे या तो फुल पेमेंट विड्रॉल या तो पार्शियल पेमेंट विड्रॉल, और उनको अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी भी होगी। ये जो हम ट्रांजिशन चेंज ला रहे हैं पेमेंट सिस्टम में, ये बहुत अहम है, क्योंकि पहले चेक्स प्रिंट होते थे, वो चेक्स पटवारियों के पास जाते थे, DCs के दफ्तर में जाते थे, पटवारियों के पास जाते थे, उसमें रिश्वत वगैरह इस किस्म की पैसा, इस किस्म की हर किस्म की जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आ जाती थी। ये सारा ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं होगा, ह्यूमन एलिमेंट। और एक मैं फैसल इस पे मजीद बात करते हैं, एक सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, वो ये कि जो पेमेंट उनको होगी वो बैंक ब्रांचेस में होगी, कैमरास, सर्वेलेंस कैमरास उसको कैप्चर करेंगे। और तो ये बहुत अहम बात है कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो कि माशाल्लाह, यही तो वजह है कि देखिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी हमारा टेलीथॉन शुरू हो रहा है और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फंड रेजर 32 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, और पाकिस्तानी कौम ने सबसे ज्यादा, और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे ऊपर एतमाद किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंड रेजिंग की, जो अभी मैंने सानिया को इतना तफसील में इन्होंने आपको डिटेल बताया कि किस तरह फंड इकट्ठा होगा और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, और इसकी शफाफियत सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने देखा है कि मेरी जो कौम है वो पैसा, शायद ही कोई कौम इतने खुले दिल से पैसा देती है जो मेरी कौम, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो वो पैसे देंगे वो ठीक जगह पे जाके लगेंगे। तो इसलिए इतनी तफसील में बताया गया कि पैसे कैसे जब जाएंगे तो उसकी वेरियस स्टेजेस पे कोई बीच में रुकावट नहीं होगी, कोई किसी के थ्रू पैसा नहीं जाएगा, डायरेक्टली वो जो अफेक्टेड लोग हैं उनके पैसा जाएगा, और फिर उनकी असेसमेंट कैसी की जाएगी, इस पर टेक्नोलॉजी का हर जगह इस्तेमाल है। जी जी, सानिया निश्चित साहिबा, बात भी करेंगे कि जाहिर है ये जो करेक्शन हो रही है लोग जो पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब और खैबर, हम आपसे पूछेंगे कि सिंध और बलोचिस्तान के हवाले से कि क्या मैकेनिज्म होगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पहले कॉलर लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, ये सॉन्ग थोड़ा बंद कर दीजिएगा। जी हेलो, आवाज जाने में। ये जो शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी है, यही ये जो देख रहे हैं ये सिर्फ
हम नॉर्थ अमेरिका के लिए कर रहे हैं, मैं सिर्फ फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम लैग आता है क्योंकि जब वहां से बात करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लैग। जी हाँ, कुछ सेकंड्स का डिले है। तो ये जो शफाफियत जिसको आप बता रही थी, यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के 222 टेरिटरीज और कंट्रीज को देखा, 3,333 प्रोग्राम्स को जांचा, और उसमें माशाल्लाह अंडर द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में आपने जो एहसास इमरजेंसी कैश था, शफाफियत की वजह से वो दुनिया में टॉप प्रोग्राम्स में आया। तो यहाँ कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तो आप थोड़ा सा ये जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, अभी जी आप बताइए बलोचिस्तान और सिंध के हवाले से। मेरे ख्याल से ये वजाहत कर देना बहुत अहम है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने पहली टेलीथॉन में भी कहा था और अभी भी उनकी खास हिदायत है कि ये जो फंड्स हम कलेक्ट कर रहे हैं ये खाली केपी और पंजाब के लिए नहीं है, इसमें सिंध का भी हिस्सा है, इसमें बलोचिस्तान का भी हिस्सा है, दीगर फेडरेटिंग यूनिट्स का भी, जीबी और एजेके का भी है। मैंने बात शुरू केपी और पंजाब से इसलिए की थी क्योंकि वहां पर मशावरती अमल जो है वो अब पायतकमील को पहुंच चुका है और हमें क्लैरिटी है कि हमने काम कैसे करना है, मगर अब वही मशावरती अमल हम चाहेंगे कि दीगर फेडरेटिंग यूनिट्स में भी हो, क्योंकि जब कोविड आया था तो हमने कोई तफरीक नहीं की थी सियासी बुनियादों पर। और आपको याद होगा कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला निकाला था कोविड रिलेटेड एहसास इमरजेंसी कैश का, वो एनएफसी के मुताबिक था और उसमें सिंध का हिस्सा 22% था, मगर जब हमने एक्चुअल डिस्बर्समेंट की तो हमने सिंध को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया था, 31%। तो इस वक्त भी हम चाहेंगे, और चेयरमैन साहब की हिदायत भी ये है कि ये तमाम काम बिल्कुल गैर सियासी, शफाफ, मुनज़्ज़म, गैर जानिबदाराना अंदाज से हो। तो जो तरीक़ाकार केपी में और पंजाब में अपनाया गया है एग्जैक्टली वैसे ही दूसरे फेडरेटिंग यूनिट्स में भी अपनाया जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब हमसे ताउन करेंगे इस सिलसिले में। जी ठीक है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी आपको बताया कि ये नॉर्थ अमेरिका के लिए प्रोग्राम, तो आवाज आप में थोड़ा सा डिले आ सकता है, हम कोशिश करेंगे अभी आपकी कॉल्स जो आ रही हैं तो आपसे रवानी से बात हो सके। नंबर है आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 001-855-8866-387। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, floodrelief2022.punjab.gov.pk। साथ ही में जो लोग बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के बैंक ऑफ खैबर का और बैंक ऑफ पंजाब, पंजाब गवर्नमेंट का अकाउंट जो है फ्लड रिलीफ का, वो भी अनाउंस हुआ है, वहां पर आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कंट्रोल रूम से मैं बता रहा, थोड़ा सा डिले है कॉल में। खान साहब, साथ साथ सोशल मीडिया पर भी हमें पैगामात जी मौसूल हो रहे हैं, तो यही सवाल यही कर रहे हैं कि एक मुहिम चली पूरी आपकी जब पहली टेलीथॉन हुई कि जी आप जो है सिर्फ क्योंकि आपकी हुकूमत जहां पर है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वहीं के लिए फंड्स कर रहे हैं। सिंध कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये म्यूजिक थोड़ा बंद कीजिएगा जी। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहां से? महमूद बोल रहा हूँ डेटोना बीच फ्लोरिडा से। आवाज आ रही है? फ्लोरिडा से महमूद साहब। जी ताहिर महमूद बोल रहा हूँ, फ्लोरिडा डेटोना बीच। जी खान साहब से बात कीजिएगा जी, इमरान खान साहब से। थोड़ा वॉल्यूम। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब ताहिर बोल रहा हूँ डेटोना बीच फ्लोरिडा से, क्लोज टू ओरलैंडो फ्लोरिडा। यू बीन हियर इन द पास्ट। ताहिर, तो सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ आपकी जात की खातिर, जो कि हमें पता है कि जो एक सिंगल पैनी भी थ्रू आपके जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रांसपेरेंट और डिजर्विंग। जी ताहिर साहब, थोड़े से हो गए यहाँ पे, उनकी तरफ से $50,000 मैं भेजना चाह रहा हूँ। $50,000। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। $50,000 से आगाज हो गया है। अब आप भी आए और बीट करें इनको, जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी हेलो जी 312-217-5458 राजा मोहम्मद याकूब पीटीआई शिकागो राजा मोहम्मद याकूब। जी जी बोलिए, खान साहब से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको जी। मुबारक इस जॉब का। मैं कुछ आपसे कहूंगा कि शिकागो पीटीआई with my team, President PTA Chicago Raja Yaqub and team members are here. We are donating $25,000 today, inshallah, and plus more in the future. Number one. Number two, PTA Chicago and community is very concerned with Dr. Shahbaz Gill issue. And also, since May 25th, Khan Sahab, जो हमारे साथ जिल्लत में सलूक हुआ है शहबाज गिल साहब के साथ और बाकी हमारे वर्कर के साथ, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पीटीआई की तंजीम को मजबूत करें, उनकी तरबियत सबकी हो। आपके पास बड़े बड़े काबिल लोग हैं, फैसल भाई जैसे, चौधरी जाज जैसे और अली मोहम्मद जैसे, ताकि ये जो आपकी एक बहुत बड़ी नोबल काज है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास मजबूत तंजीम हो। और अल्लाह करे कि अगर कोई ऐसा हादसा न हो जाए तो ये आपके जो मिशन है इसको जारी रखा जा सके, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो डॉक्टर शहबाज गिल प्लस हमारी जो तंजीम है उसके बारे में हमारा सवाल है। डॉक्टर शहबाज गिल की फैमिली भी मेरे साथ बैठी हुई है और डॉक्टर मुज़्ज़ाराई और उनकी बाकी लोग भी, हमारे पीटीआई के सारे मेंबर्स जो हमारे इलेक्टेड और दूसरे सपोर्टर्स यहाँ पे हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ रोशनी थैंक यू $25,000। $25,000। अगले कॉलर कितना करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी जी हेलो हेलो जी जी आ रही है आवाज। Yes, this is Saeed Rahman from Bonuma Foundation in Portland, Oregon. जी सईद रहमान साहब आवाज आ रही है, बोलिए जी। खान साहब से बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इमरान भाई जी वालेकुम सलाम। on behalf of Bonuma Foundation, जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। On behalf of Bonuma Foundation, we have been providing warm meals to people in Rajanpur and all around, and we have been serving tens of thousands of meals on a daily basis, and we are planning on giving your organization at least $100,000 to $150,000, and this year our plan is to raise $2.5 million for the flood victims, inshallah. बहुत बहुत शुक्रिया जी और बहुत खराज तहसीन आपको। 2.5 अरब रुपया रेज करेंगे आप, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम एक वक्फा देते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें ये भी ठीक करते हैं। आप कॉल्स का सिलसिला जारी रखें, थोड़ा डिले हो सकता है बातचीत में, लेकिन आप अपनी बात रवानी से करें। आपकी आवाज हमें बिल्कुल साफ और शफाफ आ रही है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर आपसे